interplay of religion and politics, evolving scenario in Arunachal Pradesh. And now in this panel discussions, we have two speakers who would deliberate on this. Mr. Tokuteki, who is the President, Arunachal Christian Forum, and Mr. Pai Dave, who is President, Nishi Indigenous Faith and Cultural Society. And to moderate, my friend Ranju Dodo. As my friend Kapi has already said, we are already running short of time. So we will skip certain parts, but we do have to provide some context of where this discussion what it will center around, especially for our guests who have come from outside the state, to give a little bit of history and context. Now, I would have actually liked to have cited the most recent data, but since the this year's census could not take place, we'll have to use the census data from 2011, according to which the state's population is around 14 lakhs, which has a Hindu population of 29%, which is also debatable actually, because a lot of people who actually practice indigenous faiths sometimes get clubbed as Hindus, and that the Christian population is 30.26%, and that those who follow other religions, that would possibly specifically only include those who practice indigenous faith. Now that in itself is again a divided matter. It's not just the people who follow the Doni Polo religion that make up those indigenous faiths, that there are other religions, other indigenous faiths like the Rangphra and the entire system. And within the indigenous faiths, what is now counted is also Buddhism, which has a different section of 11%. Now this is the 2011 census data. Of course, the recent figures would be different. I'm sure the figures have swung, increased or decreased from all the religions, all the religious sections that we have. Now, that's just to provide a little bit of context. For anyone who's seen the promo video for this panel discussion, there was a promo video made. I just want to clarify that we're not going to have an intense debate. We are here to have an interesting discussion. Think more Test cricket, less T20. We are going to have a discussion, and we can hope to have a discussion where we can learn from each other, rather than go back with our same views and not change our minds at all. So the part where we will skip is the part about opening remarks. Now, the program agenda had opening remarks in it, but we have two evangelists, and I think if we give them time for opening remarks, NPP will have to pay for the dinner as well. So let's skip the opening remarks section, and we'll jump straight into the main topic, which is the interplay of religion and politics and the evolving scenario within the state. I want to start with Pai Dave here. Right? Let's jump to the question. Is there a relation between politics and religion in Arunachal Pradesh? Is there any relation? Is there a direct relation between religion and politics in Arunachal Pradesh? Does the fact that if I am a Christian and my representative or anyone who's contesting the election is not a Christian, does that affect my vote, or am I more concerned with the 5-yearly development that comes in packages in Arunachal Pradesh? Thank you very much for giving this opportunity. इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा. हमें खासकर बड़े भाई हम दोनों को अगर टाइम नहीं देने से ये ना इंसाफी रहेगा, क्योंकि you have make such a promo that कि intense debate जब से वो promo शुरू हुआ तब से हमें इतना फोन कॉल आने लगा कि कब इसका है, कब कहाँ है. And I hope कि most of people of my relatives and all, they have come to listen to us. और अभी देखने को मिलता है कि हमें सबसे कम टाइम दिया जा रहा है. It's a kind of मैं तो सोच रहा हूँ आपका प्रोपोगंडा जैसा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए you should give us a time. हमें टाइम देना चाहिए ओपनिंग रिमार्क्स के लिए. ठीक है सर, मुझे सर डिनर का वो कर दीजिए, मैं मेन्यू बाद में भेज देता हूँ. So this is also a kind of regional aspiration कि लड़ के निकलना पड़ता है अपना हक को. तो मैं straight way I'm just मैं typical अपना जो अरुणाचली जो हिंदी है
उससे बात करना चाहूंगा मैडम। इसलिए हम हिंदी बोलते हैं कि क्योंकि हमारे गांव में जो अनपढ़ रहते हैं उसको इंग्लिश समझ बोलना पड़ता है। और यहाँ पे हमका 26 मेजर ट्राइब्स है, मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। अगर मैं अपना निजी बात करूं तो समझ में नहीं आएगा। इसे कॉमन लैंग्वेज इज हिंदी, इसलिए हम हिंदी को बात करते हैं, हिंदी से चलते हैं। तो एज वी नो, एवरीबॉडी सेज कि मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज अ recipe of disaster. This we have seen in the past also, either it's in Roman Catholic or the emperor and the pope and the political leaders of western country में जाने से we have seen that the conflict among them, क्योंकि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स किया। जब अगर इंडिया में आप देखा जाने से we have seen the holocaust of during the partition, or we have seen many communal riots in because of this mixing of religion and the politics. अगर आप जब अरुणाचल का बात करें तो अरुणाचल में अभी ऐसा है कि एज अकॉर्डिंग टू दी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से अभी अरुणाचल में दो भागों से बता गया है। सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू। एक जो है वन ग्रुप इज जो अपना कल्चर का बात करता है, अपना धर्म का बात करता है, अपना रीजनल का बात करता है, उसको कहा जाता है भक्त, अंधभक्त। और जो एक ग्रुप है जो लिबरल है, जो होता है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो होता है होने दो, उसको लिबरंदू कहता है। दिस टू काइंड ऑफ सेक्शन जो हम डिवाइड करके रखा है। बट वी नीड टू सी, वी नीड टू राइज अबव दिस। हमें उससे ऊपर उठ के देखना है अरुणाचल क्यों क्रिएट किया। Why Arunachal has been given union territory in 1972? क्यों? और why in 1987 अरुणाचल को स्टेट क्यों बनाया गया? Of course, the development was a paramount objective, but the main objective is a regional aspiration. Original aspiration क्या है? What is those regional aspiration? Not only Arunachal, आपका मेघालय बोलिए, मणिपुर बोलिए, मिजोरम बोलिए, मिजोरम और अरुणाचल एक साथ यूनियन टेरिटरी भी मिला, स्टेट्स भी मिला। क्यों रीजनल एस्पिरेशन? व्हाट वी आर द रीजनल एस्पिरेशन? रीजनल एस्पिरेशन वेयर द एथनिसिटी, टू प्रिजर्व आवर एथनिसिटी, टू प्रिजर्व आवर यूनिक रिलीजन, टू प्रिजर्व आवर यूनिक कल्चर, टू प्रिजर्व आवर यूनिक लैंग्वेज। लेकिन आज आप कहां आप देखने, आप अभी बता रहा है डेमोग्राफी, वी आर इन माइनॉरिटी। आपका इंडिजिनस रिलीजन आज माइनॉरिटी में है। व्हाई? इंडिया रहा, वेयर इज आवर इंडिजिनस लैंग्वेजेस? कहां है वो डायलॉग? एंड हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अब अभी यहाँ पे पॉलिटिशियन आता है, एक बीजेपी को गाली दे रहा है, एक कांग्रेस को गाली दे रहा है। काल जैसे भाई एक पूछा था, काला बीजेपी में जाएगा अब वही गाली देगा, काला कांग्रेस में जाएगा वही गाली देगा। बट सफरर, हु इज द सफरर? वी द कॉमन पीपल। इसलिए हम यहाँ आज एक इंडिजिनस इस रीजन का होते हुए एक सवाल करना है। इससे सवाल से पहले ये एक बहुत ही सुंदर जो हमारे फिराक जलालपुरी के एक उर्दू कविता है, तू इधर उधर की बातें ना कर, तू इधर उधर की बातें ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, तू इधर उधर की बातें ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वी हैव डोंट कंप्लेन अबाउट द कॉमन पीपल। हमको कॉमन पीपल से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम शिकायत है उस रेस्पॉन्सिबल पीपल से जिसको ये दिया गया है, दोस्त हु हैव प्लेड द रीजनल एस्पिरेशन को लेके पॉलिटिक्स में आया, जिन्होंने अपना पॉलिटिक्स का जिंदगी इसमें बनाया। पॉलिटिशियन कब अरुणाचल का 1978 में अरुणाचल का फर्स्ट जो जनरल असेंबली इलेक्शन हुआ 1978 में हुआ। 1978 में जब जनता पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ 14 मार्च को, गवर्नमेंट फॉर्म करने के साथ साथ 2 महीना में 19 मई 1978 में अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक लॉ बिल पास किया था, बिल नंबर 4 में, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, और प्रेसिडेंट ने भी उसको एसेंट कर दिया था वही साल में 25 अक्टूबर को। लेकिन अभी तक उसका क्या हुआ? किसी ने उसका हाथ लगाया, किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा है, उसका रिजल्ट है अभी हमारे यहाँ के जो इंडिजिनस, जो जिसको हम प्रिजर्व करने के लिए जो रीजनल एस्पिरेशन बनाया है, वो माइनॉरिटी में है। हमारे कल्चर आज नहीं है, हमारे आज लैंग्वेज नहीं है। तो इस चीज को हमको बचाने के लिए क्या करना? हमें
जो रीजनल एस्पिरेशन आपको बोल रहा है, हमारे लिए ये लगता है कि पॉलिटिक्स उससे खेलना चाहिए, यहाँ का जो धर्म है उस बेसिस में कि हमारे लिए ट्रैवल का धर्म क्या है। हम कोई पॉलिटिक्स से, कोई धर्म से हमारा कोई नाता नहीं है, यहाँ के जो ट्रैवल से कोई हमको लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारा धर्म नहीं था, हमारा पॉलिटिक्स नहीं था, यह भी नहीं है। धर्म डेफिनेटली था। हमारे लिए धर्म क्या है? धर्म हमारे लिए सत्य, सच्चाई हमारे धर्म है, ऑनेस्टी हमारे धर्म है, गुड गर्ज हमारे धर्म है, सच्चाई। हम इसलिए सच बोलता है। अब यहाँ का लोग को, ट्राइबल लोग को जब भी देखेंगे कि सच बोलता है, सच क्यों बोलता है? हमारे ट्रेडिशन है कि अगर झूठ और सच को हम फैसला करने से वहीं में पूजा करता है। अब सच है तो पानी गर्म करके पूजा करेगा, अब सच है तो आपको पानी गर्म में भी, उबलता हुआ पानी में भी और लोहा में भी आपका हाथ नहीं जलेगा। लेकिन आप झूठ है तो वहीं का वहीं जलेगा। वहीं देख, आंखों देखा हमारा फैसला हो जाता है। इसलिए हम सच्चे से जीता है। और ईमानदारी का सबूत, ऑनेस्टी का सबूत क्या है? अभी आप गांव-गांव में जाइए, अभी हम शहर में, लेकिन गांव-गांव में जाइए, जितना भी संपत्ति, धनी से धनी, कितना कीमती से कीमती संपत्ति हम घर में रखता है, लेकिन हम कभी ताला लगाता नहीं, क्योंकि वी बिलीव इन द ऑनेस्टी। हम ईमानदारी से जीता है। और हमारे गुड गर्ज क्या है? हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारे जो ट्रैवल का सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, उसका सबूत हमारे कभी भी, आज नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर गोइंग फॉर दिस ओल्ड एज होम एंड ऑर्फनेज होम। हमारे कोई ओल्ड एज होम नहीं रहता था, कोई ऑर्फनेज नहीं रहता था। हमारे सोसाइटी उसको जीता था, हमारी सोसाइटी उसको अडॉप्ट कर। कभी हमारे माँ पिताजी को कभी ऐसा ट्रैवल ट्रेडिशन में रहा ही नहीं कि किसी उसको ओल्ड एज होम में भेजे। हमारे कोई ऑर्फन को कभी ऑर्फनेज में भेजे, कभी हमारे ट्रेडिशन था ही नहीं। ये हमारे गुड गर्ज। लेकिन आज डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ दिस मोरल। ये डिग्रेडेशन कहां से शुरू हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द फेथ। ये हमारे क्या है? नेता, पॉलिटिक्स से ये डिग्रेडेशन। अभी पॉलिटिक्स में भी वी आर डिग्रेडिंग। आज हम जब पॉलिटिक्स का बात करता है, जैसे अभी मैं सब क्वेश्चन पर आ रहा हूं, पूछा गया है कि धर्म और पॉलिटिक्स में क्या कुछ रिलेशन है क्या? डेफिनेटली उसमें रिलेशन ऐसा ऊपर से देखता है नहीं है, लेकिन डेफिनेटली है। और ये लेकिन पहले कभी भी हुआ नहीं करता था, लेकिन आज है। और ये कहां से आया, ये भी हमें जानना है। आज है, आप देखेंगे कि 9 अप्रैल 2019 में 2019 टाइम्स ऑफ अरुणाचल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, डोंट मिक्स रिलीजन विद द पॉलिटिक्स। उसमें उस आर्टिकल में यह एलेज किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन एंड अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च हैज कैंपेन फॉर द 2019 इलेक्शन। तो ये कहां से आया? हमने कभी हमारे धर्म के बारे में लेके हमने कैंपिंग नहीं किया। ये कैंपिंग कहां से आ रहा है? दिस थिंग इज वेरी डिजास्टरस, जैसे हमने कहा। इसलिए हमें और पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं। अभी हम पॉलिटिक्स जब धर्म का बात करते हैं, धर्म में हम बहुत सुंदर सुंदर बात करता है, आइदर इट इज इन चर्च और इट इज इन नामलो गुरु। हम चर्च में सुंदर सुंदर भाषण देगा, प्रीचिंग करेगा, लेकिन जब इलेक्शन आता है मॉर्गेज मांगता, जब इलेक्शन आता है हम पैसा देता है। नामलों में सुंदर सुंदर भाषण करेगा, सुंदर सुंदर भाषण बोलेगा, लेकिन जब हम इलेक्शन होता है पैसा जब तक नहीं देगा, वोट नहीं देगा, मॉर्गेज जब तक नहीं रखेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाई? बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन। तो यहां के जो हमारे जो रीजनल जो एस्पिरेशन, जो रीजनल जिस चीज के लिए ये अरुणाचल बनाया गया है, उसको लेके अरुणाचल का जो रीजनल एस्पिरेशन को लेके जो अरुणाचल बनाया गया, वी नीड टू लुक बैक। उसको हमें फिर से देखना, दोबारा देखने का जरूरत है। और मैं लास्ट में, टाइम नहीं है इसलिए लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी, लेकिन हमें पॉलिटिक्स क्यों जितना भी खेलिए, धर्म का पॉलिटिक्स जितना भी खेलिए, लेकिन एक चीज हमको ये गर्व महसूस होना है, हमारे बाद में कुछ है, हमारे जो ट्रैवल कल्चर में, देयर इज समथिंग इन आवर ट्रैवल कल्चर जो कभी मिटेगा नहीं है। दैट इज हमारे जो अंदर में वो है, एक चीज है। इसलिए उसमें भी एक जो हमारे जो इकबाल अलामा का बहुत ही सुंदर उसमें कवि है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे,
सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा, जितना भी दुश्मन रहा हो, लेकिन एक बात जो है कि हमारे जो है वो मिटती नहीं है। और डेफिनेटली यही बात लेके, यही बात हमको आगे भी ताकत देगा। और हम जो अपने रीजनल एस्पिरेशन जो हम बोल रहा है उसको लेके हम डेफिनेटली वो करा करेंगे। और हम जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को भी जितने भी हम धर्म के नाम से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में धर्म होना चाहिए। पॉलिटिक्स में धर्म होने से पॉलिटिशियन को वो मोरलाइज कर सकता है, अच्छा कर सकता है। इसलिए आई होप कि विद दिस कॉन्क्लेव कि हम ये एक मैसेज दे कि यहाँ अरुणाचल में, एटलीस्ट इन द अरुणाचल, हम जो धर्म का पॉलिटिक्स आगे में भी नहीं करें। और यहाँ पे अरुणाचल में धर्म का पॉलिटिक्स सक्सेस भी नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस इसलिए नहीं होगा कि यहाँ जातिवाद, यहाँ हम वी लिव इन द रिलेशन, हम अपने ये जो रिलेटिव्स है उसको बहुत महत्व देता है, हम रिलेटिव्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बट देन बीइंग अ इंटेलेक्चुअल, अभी बीइंग अ एजुकेटेड, वी नीड टू फाइंड आउट द राइट पीपल हु कैन एक्चुअली रियली लुक आफ्टर आवर रीजनल एस्पिरेशन। नहीं सिर्फ बोल के नहीं, बल्कि उस पर अमल करने वाला ऐसा पॉलिटिशियन हमें ढूंढने का आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। है कि एक इंडिजिनस फेथ ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव और इकबाल और उर्दू के इडियम्स को यूज कर रहे हैं अपने स्पीच में। एक्चुअली जस्ट वांटेड बी जस्ट इन्फॉर्म्ड अजीज, थोड़ा उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो अजी अपना ओपनिंग रिमार्क्स एज सच नहीं दे पाएंगे। और एक्चुअली खड़ा होके जो भी उनको जो जवाब देना है, जो भी बोलना है, वो खड़ा होके बोलना चाहेंगे। बैठने में थोड़ी आवाज थोड़ी धीमी हो जाएगी, इसलिए अच्छा आपको भी वही सवाल तो मैं वही रखता हूँ कि हमारे इंटरप्ले ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये धर्म और राजनीति में कुछ आपको कुछ रिश्ता दिखता है हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे अरुणाचली पॉलिटिक्स में, या फिर आपको लगता है कि इन दोनों का कुछ कनेक्शन ही नहीं है? आप Hello. First of all, thank you, National People's Party of Arunachal Pradesh State Unit, and also thank you, the Honorable CM of Meghalaya, who is patiently listening to all the discussions, and all the dignitaries, youths, and the people of Capital Complex. Regarding this point, interplay of religion and politics, it cannot be fully denied also that religion has no role in politics. ऐसा भी बात नहीं है, होता है। हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑन बिहाफ में हम यहाँ खड़ा हुआ है, हम लोग का क्रिश्चियन में क्रिश्चियन पब्लिक अपना चॉइस कोई भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है। हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक सेफ डिस्टेंस में मेंटेन करता है। और स्पेशली जो अभी हमारा भाई ने बोला है कि 2019 में ऐसा सुना है बोल करके, तो यहाँ में 33-34 क्रिश्चियन मेजर ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट में, उसमें एक दो लाइन का बाहर में भी जाके कुछ किया होगा। और एज फॉर माय इंफॉर्मेशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट दे हैड डिस्कशन विद द कंसर्न ग्रुप। इसलिए हम लोग जो है अरुणाचल स्टेट क्रिश्चियन फोरम, वी ट्राई टू मेंटेन neutrality, a safe distance from every political party. No party is untouchable or no party we support. इसी तरह हम लोग करता है। मगर 2019 इलेक्शन में हम लोग का चर्च ने एक मिजोरम चर्च का जो एक्टिविटी से इंस्पायर हो करके हम लोग एक क्लीन इलेक्शन होना चाहिए बोल करके कैंपेन किया था। मगर वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुआ, 50% भी सक्सेस नहीं हुआ, वो फेल हो गया। क्योंकि यहाँ स्टेट में सिर्फ क्रिश्चियन पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ में हमारा दोनीपोलो इंडिजिनस फेथ का भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है, बुद्धिज्म है और हिंदूज है, मुस्लिम्स है।
सब रिलीजन अगर मिल करके ये क्लीन इलेक्शन को जैसा मिजोरम में सक्सेसफुली वो लोग लॉन्च किया है, यहाँ अरुणाचल में हम लोग फ्यूचर में हम करते हैं बोल करके पाई दावे साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा भी कमिंग इलेक्शन का आगे प्री ये क्लीन इलेक्शन करना है। अभी ऑनरेबल सीएम सर को पता है कि नहीं, मेरा हिसाब से सारा इंडिया में अरुणाचल का इलेक्शन सबसे कॉस्टलीस्ट होगा। कहां में पार बूतर को 40,000 देता है, 40,000, और थोड़ा डेवलप एरिया में 25,000 पार बूथ को। तो एक फैमिली में 10 वोटर्स होने से तो डायरेक्ट गाड़ी खरीद सकेगा पूरा का। अगर तो ऐसा भी केसेस होता है कि फैमिली में कोई एक भाई भैया थोड़ा चालू टाइप होने से वो फैमिली का सबका लिस्ट बना के कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट से पैसा ले लिया और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, अकेला बुक के भी घूमता है। तो इसीलिए ये क्लीन इलेक्शन जो मिजोरम चर्च ने किया है, ये एक बहुत अच्छा चीज है। तो इसलिए मैं इंडिजिनस फेथ लीडर आज पाई दावे साहब को फर्स्ट टाइम मिला है। आपको रिक्वेस्ट है, क्रिश्चियन लोग कमिंग इलेक्शन में भी ये कैंपेन ट्राई करेगा, तो इसको दोनों पोलो लोग भी एडॉप्ट करने से बहुत अच्छा होगा। और जब पॉलिटिक्स में हम लोग का इन्वॉल्वमेंट न्यूट्रलिटी में रहेगा, वी आर नॉट अपोज टू एनी पार्टी, either it may regional or national. We have to, as a church body, we have to, we cannot go ahead with our plan that ये पार्टी को वोट दीजिए, इसको मत दीजिए, हम लोग नहीं बोल दे सकेगा। ये चीज जो अभी पाई दावे ने बोला है, ये चीज हुआ तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ गलतियां हुआ है वो लोग को बुला करके एक्शन भी लिया है। एक्शन मतलब वो लोग से बातचीत किया है, समझाया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा ज्यादा पॉइंट नहीं है, मैं इतना में थैंक यू। So I'll just continue with Achi here. Achi, आपने बोला कि the church is maintaining equal distance. किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगाव नहीं है या फिर किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं है। But as a religious body, as a religious organization, आपको नहीं लगता कि एक थोड़ा बहुत हिपोक्रिटिकल हो जाता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी आपके फेथ के डायमेट्रिकली अपोजिशन हो जाता है, जिसका पार्टी आइडियोलॉजी ये कहता है कि एक सर्टेन धर्म का जो रूल्स है उसको उसी रास्ते पे चलना चाहिए, जो आपके धर्म के अगेंस्ट हो जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इट सेफ, ओपनली आके बताई दीजिए कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ नहीं है, और हमारे आपको वोट जिसको करना है कर दीजिए, लेकिन चर्च का स्टैंस ये है। ओपनली आके क्यों नहीं कह देते हैं? नहीं, स्पेशली जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है जो ये स्टेट को चला रहा है, वो इनजस्टिस कुछ करेगा तो रिएक्शन भी ऐसा ही होगा ना। माने से फॉर एग्जांपल अभी अरुणाचल में हम लोग ने तवांग चर्च इशू के लिए यहाँ आईजी पार्क में धरना किया था। तो धरना इसलिए करना पड़ा है कि जैसा तवांग चर्च 20 साल 2 डेकेड्स आगे से चल रहा है और सडनली बोलता है कि ये चर्च लोग को बंद करना है। तो ऐसा रिएक्शन में क्रिश्चियन पब्लिक लोग पॉलिटिकल अपना ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना स्टैंड भी लेने का भी चांस है ऐसा में ना। मगर हम लोग एक फोरम हिसाब से इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का अगेंस्ट होगा कि हम लोग ये पार्टी को रिजेक्ट करते हैं, ये पार्टी ये करते हैं, ऐसा बोलने का तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, विल एक्सेप्ट दैट एज एन आंसर। हाउ को आप जब ओपनिंग रिमार्क्स में आप कह रहे थे कि द रीजनल एस्पिरेशंस आर आल्सो अबाउट प्रिजर्विंग एथनिसिटी, अभी लेकिन जो इंडिजिनस रिलीजियस फेथ मूवमेंट जो चल रहा है, बहुत सारा का सवाल ये है कि ख्याल ये है कि वो एथनिसिटी जो प्रिजर्व कर रहे हैं ये तो नया एथनिसिटी है, वो पुराना प्रैक्टिसेस तो बहुत सारा डाइल्यूशन हो ही गया है।
जैसे 100 साल पहले रहते थे वो सब प्रैक्टिसेस तो नहीं करते हैं। अभी नामलो बनाते हैं। Namlos are prayer centers, traditional prayers, Nishi traditional prayer centers for those who don't know, where you go and offer your prayers. तो नामलो बनाते हैं, अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो हम लोग दोनी पोलो को पूजा करते हैं, तो दोनी पोलो तो बाहर में अंदर आना पड़ता है, जबकि वो तो बाहर में, ये तो बाहर में पूजा कर लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो भी प्रिजर्व करना है, बट व्हाट यू आर प्रिजर्विंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ओरिजिनली प्रैक्टिस्ड। ये सवाल जो है हमेशा पूछा जाता है। इट्स वेरी सिंपल। अगर वो एक्चुअली आप लोगों को भी समझ में आता है कि क्यों ये होता है, बट वो क्रिटिकली उसको पूछने के लिए पूछता है। ये काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन, दिस इज अ रिफॉर्मेशन। जैसे हम हमारे जो पूर्वज जो है आता है, पूर्वज जो पहन के आता है, नंगा होके आता है, नाउ वी आर पुटिंग क्लोथ्स, लॉन्ग पैंट, ये एक रिफॉर्मेशन है। लेकिन हम क्या, वो एक लॉन्ग पैंट पहन लिया बोल के, हाफ पैंट पहन लिया बोल के, वो हम अपना, मेरा शरीर तो नहीं बदला है ना। हाँ, 4 हाथ वो 2 हाथ वही है, 2 पाँव वही है, नाक वही है, कान वही है। उसी तरह हम भी अपना जो रिफॉर्मेशन कर रहा है उसको बदल। लेकिन हम जो अस्तित्व है, धोनी को तो हम धोनी को ही मान रहा है ना, पोलो को ही बोल रहा है। धोनी को तो हम दूसरा नाम से नहीं बोल रहा है, पोलो को तो हम दूसरा नाम से नहीं बोल रहा है। हमारे जितना भी भगवान है उसको दूसरा नाम से नहीं बोल रहा है ना, उसी नाम से बोल रहा है। इसमें एक ये है कि इसका, जैसे आपने कहा कि बाहर में नहीं मानता है, अभी घर में मानना पड़ रहा है। क्योंकि हम जो है हमारे लोगों को, हमारे ने जैसे बोला, हमारे लिए धर्म जो है कोई प्रचार प्रसार का चीज नहीं था। हम धर्म को हम जीने वाला लोग है, जो ट्राइबल कम्युनिटी धर्म को जीता है। लेकिन इन द प्रोसेस क्या हुआ कि जो हमारे जो जब एजुकेशन होने लगा, कि बाहर में लोगों आज चला जाने लगा, हमारे जो यंगर जनरेशन है, दे स्टार्ट गोइंग टू द टाउन। तो ये जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उस नॉलेज का उन लोग का गैप हो मालूम नहीं हो रहा है। तो इसको देने के लिए कहाँ है हमारे उपाय, क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द सर्टेन वेज कि जहां एक नामलो बनाओ, एटलीस्ट वहां पे आप एक बार जाए, एटलीस्ट आप घर में, गांव में अभी नहीं रह पाता है, एटलीस्ट इन दैट आप अपना ट्रेडिशन का बारे में सीख सके, अपने कल्चर का बारे में सीख सके, आपका क्या हिम्स है, क्या आप जैसे लैंग्वेज का बात कर रहा है ना, लैंग्वेज में हमेशा लैंग्वेज का जो बात कर रहा है, जो मदर ऑफ हमारे जो ट्रेडिशनल जो डायलेक्ट्स है वो हमारे पुजारी लोग का है। जो संस्कृत बोली बोलता है वो पुजारी लोग का, वो एक सुंदर सुंदर बोली, तो उसको हम नामलों में सीखता है, उसको हम दूसरा जगह में आम ऐसे टाउन में नहीं सीख सकते। इसलिए हम अभी वो रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। इससे क्या है, उसको एक अलग वे है, उसको कभी ये अलग आप लोग का प्रचार है कि इसको ये जो हम अलग तरह का मान रहे हैं, बिल्कुल अलग नहीं है। वही दोनी पोलो है, वही नेचर को हम पूजा करता है। ओनली थिंग इज दैट कि उसको हम मॉडर्न वे में रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड एवरी रिलीजन, कौन रिलीजन, मुझे आज आप बताइए कि कोई रिलीजन ऐसा है कि जो शुरू से ही आया ऐसा ही आप मिल रहा है। एवरी रिलीजन हैज कम टू रिफॉर्मेशन। सब रिलीजन रिफॉर्मेशन हो क्या है, चाहे वो क्रिश्चियन बोलिए, क्रिश्चियन पहले आपका सेक्रीफाइस करता था, हिंदू बोलिए, हिंदू पहले बलि आदमी का बलि चढ़ाता था, बट इसका बदले में अभी नारियल चलाता है, चराता है, फूल चराता है। तो ये दिस इज काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन। हम भी रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन वो बात तो वही पूजा, वही भगवान को तो मान रहा है। इट्स थिंग इज दैट की चेंज इन कंटिन्यूटी। थैंक यू। एक्चुअली इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों के लिए एक सवाल होगा, लेकिन प्रोग्राम में 2 मिनट 1 सेकंड की खेद है। एक गाड़ी एग्जिट ब्लॉक करके रखी हुई है, AR01G 1785। सो इन्होंने जिस तरह से एग्जिट ब्लॉक करके रखा हुआ है और हॉल्ट प्रोग्राम में थोड़ा हॉल्ट कर दिया है, AR01G 1785। अगर मालिक यहाँ है तो कृपया करके उसे आप खाली कर दीजिए। सो एनीवेज, जैसे आपने जिस तरह से बोला उसी के डायरेक्शन में मैं चला जाता हूं कि रिलीजन का डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होता है, नो रिलीजन स्टेज द सेम। सो मेरा सवाल ये है कि दोनों से सवाल ये है कि हु डिसाइड्स ये चेंज करना है, ये रहना है। जैसे हमारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो नाउ, तिकी साहब से मैंने पहले भी बहुत बार इंटरेक्ट किया है। अभी तो ये तो अभी अपने ट्रेडिशनल हमारे परी में अजय पहने हुए हैं, ट्रेडिशनल कपड़े में पहने हुए हैं। सो ही मेंटेन्स दैट ही इज अ निशी बिकॉज ही स्पीक्स निशी।
whether he traces his lineage from his ancestors and prays to the biblical God, that he is a Nishi. But he will not eat the sacrificial meat that is offered during the Nyokum festival. So that is where he puts the line. अभी आउगा भी जैसे बोला था कि evolution होता है, development होता है. So the question for both of them is कहाँ तक कौन डिसाइड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इतना तक करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा. हम आपका इंडिजिनस फेथ को हम यहाँ तक चेंज करेगा और इसको चेंज नहीं करेगा. So who gets to decide and why should some people get to decide? हर किसी को डिसाइड करने अपना इंडिविजुअली. मुझे अगर मैं क्रिश्चियन हो जाता हूँ तो मुझे न्योकुम का मीट खाना है या नहीं खाना है, वो मुझे डिसाइड करने को मिलना चाहिए या फिर आपका क्रिश्चियन बॉडी को मिलना चाहिए. क्या ये जो न्योकुम या जो भी पूजा में ये उसको क्यों खाने नहीं दिया जा रहा है, ये पूछ रहे हैं ना? अच्छा. नहीं, हम लोग का क्रिश्चियन में भी बहुत 50% क्रिश्चियन लोग तो भाई दावे भाई को पता होगा न्योकुम तो जाता है, कोई लोग नहीं जाता है. देती जब हम लोग ये न्योकुम का ऊपर में क्रिश्चियन फोरम ने एक बार मीटिंग कराया था न्योकुम कितना लोग जाना है नहीं जाना है. मीटिंग कराया तो झगड़ा होने वाला हो गया, हम लोग मीटिंग को कैंसिल कर दिया. जो जाने दिल ले जाइए और जो जाने दिल नहीं मत जाइए ना, एकदम माने फ्रैंकली ऑनेस्टली. जो जाने दिल है जाइए. और कोई लोग तो न्योकुम में, हम खुद जब हायर सेकेंडरी में जीएस था याजाले में, न्योकुम सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी था. बेंगिया तोलुम चेयरमैन था, अभी नेस का जो प्रेसिडेंट है. तो हम लोग तो काम करके आया है. तो अभी बात यह है कि पेट का बाइबल तो अलग अलग वे से इंटरप्रेट करता है. तो इसलिए नाहर लोगों में बहुत साल आगे एक बार मीटिंग रहा था तो आर्गुमेंट बहुत डेंजर से हो गया. तो हम लोग डर के बुलाया होगा, अपना अपना डिसाइड कर लो ना, जो जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, ऐसा है. बस मेरा तो यही, ये मंच का तरफ से यही अपील है कि गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया का जितना भी गवर्नमेंट है, थोड़ा सेकुलरिज्म को स्ट्रेस देने से बहुत अच्छा है. सेकुलरिज्म ना, हमारा रिलीजियस राइट्स को. जैसा कि मैं अगेन आई रिमाइंड यू, अभी हमारा तुआंग चर्च इशू भी ऑलरेडी हाई पावर कमिटी तुआंग जाके आ गया. आई एम वेरी होपफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मामा नातुंग ये भी रिजॉल्व हो जाएगा. और हम लोग तो हमारा बाई पाई दावे लोग का ग्रुप को हम लोग बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत प्यार है. हमको लगता है कि आज यही मंच पे रिजॉल्व हो जाएगा हमारा रिलीजियस इश्यूज. नहीं, इसमें आप देखने वाले देखते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, हम बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है. सब अपना अपना उसका हिसाब से जो जीता है. अब जैसे कह रहा था कि कौन डिसाइड करता है इसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, यही क्वेश्चन अगर हम सब में हर जगह में पूछते रहेगा तो आदमी जीने का जगह नहीं रहेगा. हर कोई जीने का जगह नहीं रहेगा. अब इधर बैठो, यहाँ में ऐसे नाम लगा के रखा है, आपको पूछेगा हु डिसाइड यू टू पुट माय नेम यहाँ में बैठने के लिए, कौन डिसाइड कर? देयर आर सर्टेन वे, सर्टेन ट्रेडिशन. और ये ट्रेडिशन हम कहाँ से सीखते हैं? हमारे जो है हर चीज, जितना भी हम एक्टिविटीज करता है, रिचुअल करता है, देयर हैव बीन, वो उसका स्टोरी से, पास स्टोरी से, उसका रिचुअल से, उसका कहानी है. वो कहानी का विद द इंस्पायरेशन ऑफ दैट, उससे इंस्पायर होके हम ये जो चीज करता है. अभी जब हम आदमी को, हमारे आदमी जब मरता है, आदमी मरता है, अभी का समय में हम कॉफिन लगाता है, लेकिन हम हमारे क्या करता है, आदमी को जैसे माँ के पेट में, जैसे माँ के वोम में बच्चा रहता था, उसी हिसाब से बच्चा को बांध के मरने समय में मरा हुआ को बांध के हम जमीन में गाड़ता था. अभी उसको पूछेगा कौन डिसाइड कर? ये जो हमारे ट्रेडिशन, इसका बिलीव ये है कि सिंस हम जो निशी में बोलता है चंकुंग तानी मीन्स हम लोग धरती माँ से, धरती से हुआ, तो जब आप मरता है तो धरती में ही आपको समा जाना है, माँ का गोद में समा जाना है, इसलिए आपको वही पोजीशन में जाना है. और दिस आर दी ट्रेडिशन, दिस आर दी फोक कल्चर्स, फोक टेल्स हु गिव अस कि इस तरह का होना चाहिए. हाँ, ये बोल सकता है कि अभी फिर आप नामलो क्यों बना रहा है, उसको हमारे ट्रेडिशन में नहीं था. तो ये जो है सम इंटेलेक्चुअल्स जो इस चीज को जानता है, पहले ट्रेडिशन को जानता है, ट्रेडिशन को जानते हुए
इसको अभी मॉडर्न को भी वो देख रहा है, ट्रेडिशन को भी वो जानता है, तो जान के दोनों में कैसे करके लेके आने से हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन को हमारे वो ट्रेडिशन को पास ऑन कर सकता है, वो लोग कर बना के चर्चा करके ये करके जाता है। राइट, देखिए साहब ने कहा था अबाउट सेक्युलरिज्म इन आवर स्टेट, इन आवर कंट्री, and I'll throw the session open for questions just after this one particular question. दोनों से यही सवाल है कि what is secularism? What is the idea of secularism for both of you? Is it the right to practice any religion I want? Is it right for me to promote any religion I want? Or is it to work primarily to protect religions and cultures that are to be protected? अभी जैसे इंडिजिनस फेथ, वेल अभी तो चेंज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स हो गया है, पहले इंडिजिनस फेथ रखा था, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, कार्मिक एंड आध्यात्मिक का एक डिपार्टमेंट भी है. व्हाट इज योर स्टैंस रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ दीज टू डिपार्टमेंट्स? और इनफैक्ट एक्चुअली कार्मिक और आध्यात्मिक को भी सबमर्ज कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली हम तो सोचता है कि जो इंडिजिनस डिपार्टमेंट, उसको भी जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स था, उसको भी अच्छे लोग ने एकदम प्रोटेस्ट करने के बाद में वो फेथ वोट को हटा दिया, उसको सिर्फ दिफका को दिया बना दिया. तो ये जो सेकुलरिज्म में कहाँ आता है? सेकुलरिज्म मीन्स कि ये जो कर रहा है, उसको जो कर रहा है, उसके लिए बात कर रहा है, उसको करने दीजिए. आप सेकुलरिज्म का बात कर रहा है, ये उसको भी चलने देना चाहिए, उसको भी चलने देना चाहिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जब दिफका बनाता है तो प्रोटेस्ट करता है, वाई फेथ को क्यों डालना चाहिए? तो ये चीज हम मतलब मेरा लिए सेकुलरिज्म से पहले आपका जो कार्मिक एंड आध्यात्मिक डिपार्टमेंट है एंड जो दिया डिपार्टमेंट है, ये दोनों डेफिनेटली एक में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है ट्रैवल का इंटरेस्ट के लिए ही करता है, ट्रैवल का ट्रेडिशन एंड कल्चर के लिए ही करता है. अगर दोनों ट्रैवल का कल्चर ट्रेडिशन के लिए ही वो डिपार्टमेंट करता है, तो क्यों अलग बुद्धिस्ट के लिए अलग ट्रैवल? वो थोड़ी अलग ट्रैवल हो गया क्या? हम दूसरा जो नॉन बुद्धिस्ट थोड़ी अलग ट्रैवल, दोनों ट्रैवल है. ट्रैवल के लिए डिपार्टमेंट है, तो दिया डिपार्टमेंट में वो कार्मिक एंड आध्यात्मिक दिया डिपार्टमेंट में आना चाहिए. हेलो, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ बोल करके एक डिपार्टमेंट जब शुरू करने का बात किया था, तो हम लोग ने बोला है कि एक रिलीजन को गवर्नमेंट एक्चुअली नियम से देखा जाए तो एक फाइनेंस नहीं कर सकता है, माने गवर्नमेंट जो ना. तो इसलिए हम लोग ऐसा देख करके थोड़ा अपोज करके देखा था, तो हमारा इंडिजिनस फेथ भाई लोग ने बहुत गुस्सा हो गया हमारा ऊपर में, क्या क्या लिखने शुरू हो गया. तो हम लोग बोला है होगा, और वो लोग इतना लड़ने एमएलए लोग मिनिस्टर लोग कर रहा है तो करके देखने दो ना, अभी चल रहा है. तो मगर गवर्नमेंट से यही है कि अभी इंडिजिनस और क्रिश्चियन तो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन बराबर है स्टेट में, पॉपुलेशन में. तो मैक्सिमम जो ऑफिसर क्लास और एलिट क्लास लोग इंडिजिनस का साथी है, हम जो देख रहा है ना, उसमें ही रखता है. फायदा भी हिमसेल्फ भी जो टेक्नोक्रेट. तो हम लोग क्रिश्चियन में तो गरीब लोग ही रखता है, गरीब गावलिया ऐसा, और एजुकेटेड भी है, ऐसा भी बात नहीं है, मगर जो एकदम माने रूरल एरिया का आदमी लोग मोस्टली इन क्रिश्चियन माने. तो देखने से तो दोनों को बराबर देखने से बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी ना, हम लोगों का उन्नति के लिए, अच्छा के लिए, ये देखने से बहुत अच्छा है. Are we taking questions from the audience? We'll just take a few questions from the audience. और मैं जस्ट एक अपील है, राइट विंग लेफ्ट विंग, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में दिख रहा है. तो अगर आप लोग का सिमिलर क्वेश्चन है, तो अगर किसी ने पूछ लिया है तो आप उसको रहने दीजिए, आप उसी में सहमति रख लीजिए. इन भाई साहब को माइक दे दीजिए. कोई कहाँ?
अब तो स्टेज में आ जाइए, अभी आप इतने यहाँ तक आ ही गए हैं, माइक where are the volunteers? मैं अच्छी तरीके से सवाल करना चाहूंगा। आपने बोला किसी रिलीजन को गवर्नमेंट का तरफ से फंडिंग करना ये संभव नहीं, लेकिन आज अरुणाचल में इंटरनेशनल में मैंने देखा MSDP, द माइनॉरिटी स्कीम। आज देश भर में माइनॉरिटी स्कीम आप चर्च वालों लोग लेते हैं, मुसलमान लोग लेते हैं और अनेक ये बुद्धिस्ट भी लेते हैं और नहीं लेते नहीं, लेकिन माइनॉरिटी स्कीम आज अरुणाचल का दलित पोलो लोग ले पा रहे हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, अभी फिलहाल ये जो कल्चर फेस्टिवल का जब बात आता है, हर एक धर्म का अपना एक नीति है, उसका रहन सहन पहन, धर्म का हिसाब से वे ऑफ लिविंग लाइफ, वे ऑफ लाइफ बोलता है। हिंदू का भी वही है, हमारा भी वे आर द नेचर वर्शिपर। हम लोग नेचर के साथ जीने वाला है दलित पोलोइज्म जो है। आपसे एक इतना सवाल है, जो न्योकुम में आप तो ये बोल रहे हैं कि न्योकुम करना हो नहीं करना, मैं सगाली का कॉन्टेक्ट सगाली का बात करता हूँ। आप सगाली में शायद आप लोग ने इजाजत दिया होगा, सगाली में जब न्योकुम फेस्टिवल हो रहा था, नेचर वर्शिप पर चल रहा था, तुरंत फेस्टिवल हो जो रिचुअल होने के बाद आप चर्च वालों ने भी फिर उसी रिचुअल को कंफ्यूज कर दिया। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी क्वेश्चन भी है, क्या आप भी आपका क्रिसमस में हमको सैक्रिफाइस करने के चर्च में इजाजत देंगे? और दूसरा 3 क्वेश्चन, मेरा 3 क्वेश्चन है, आप बाकी दोनों का भी खा दिया। 3 क्वेश्चन है। एक जो है, हर एक कल्चर में, हर एक रिलीजन में अपना एक कल्चर वेशभूषा होता है। जैसे हिंदू है, सफरन कपड़ा का पहन के साधु संत लोग घूमते हैं। जैसे आपका रोमन कैथोलिक का इशारा, रोमन कैथोलिक में सफेद फूल शॉट लगा के उसका अपना कल्चर मिलता है, आज भी पागल लोग करते हैं। आई रेस्पेक्ट रोमन कैथोलिक, लेकिन जो बाकी जो आपका जो अलायंस है, आपका डिनोमिनेशन है, ये लोग उस पर ये नहीं करके। आप सवाल पूछ दीजिए। वही तो सवाल पूछ रहा, तो आपने उसको जैसे रोमन कैथोलिक ने अरुणाचल में जैसे पहन के रखा है, बाकी जो डिनोमिनेशन को भी आप ऑर्डर दे पाएंगे? इतना समझ। थैंक यू। आखिर आपको क्वेश्चन तो सब क्लियर है। फर्स्ट तो MSDP के बारे में, स्कीम्स, माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में कह रहे थे कि नो रिलीजन शुड बी फंडेड, नहीं करना चाहिए। MSDP का स्कीम जब अरुणाचल में चल रहा था, यहाँ में हमारा फॉर्मर मिनिस्टर तांगवांग वांगखम भी है और मार्क्यू तादो लोग भी है। हम लोग बोला है कि MSDP को क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को पूछ करके देना है कि माइनॉरिटी ये रिलीजियस के लिए है। तो फिर आप लोग दोनों पोलो लोग बोला है कि माइनॉरिटी का जो अगर फैसिलिटी लेना है तो ST छोड़ दो बोला है, तो फिर हम लोग छोड़ दिया, MSDP को नहीं लिया। फिर हम लोग MSDP स्कीम नहीं लिया। ये MLA लोग जो लोकल MLA होता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो लोग देख देख करके गर्ल हॉस्टल बनाता है ना सर, गर्ल हॉस्टल तो बनाता है उससे, तो हम लोग कुछ मिला नहीं है। और आपका क्वेश्चन सगाली का बोल रहा है, मैं सगाली का मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना, क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं, बाकी दो तो लेस ऑफ ए क्वेश्चन, मोर ऑफ ए रिमार्क था एक्चुअली, एक स्नाइड रिमार्क हो गया था। I will have to unfortunately wrap up. यहाँ समय कम है और बाकी और सेशंस भी है। I would have loved to have, unfortunately we can't. Let's, as Aupaidev had said, that हर धर्म सच्चाई के बारे में बोलता है। It's about seeking truth, and hopefully through this discussion, that's all that we can find, कि ये discussion के द्वारा हमें सच्चाई मिले, इस जिंदगी में मिल जाए। Thank you. So, to the speakers and the moderator,
a memento on behalf of the organizers.